Okay. Just pay attention what I'm saying to you. Structure of DNA. Only basic concept we are going to study for the information only. DNA and RNA both have the similar type of structure, but DNA is the hereditary material, whereas the RNA is not the hereditary material. Because DNA can replicate itself, RNA cannot replicate itself. In some case of viruses, that is reverse transcription is there in viruses only. बाकी सब जगह कहीं भी RNA is not the hereditary material. RNA is the hereditary material in the case of viruses in some cases. Okay. बाकी सारे cases में DNA is the only hereditary material, but RNA is also important molecule in the nucleus. Now see, DNA and RNA simultaneously we are going to study the structure of DNA actually made by of component of DNA we are talking about. The component of DNA actually number one is sugar. And that sugar is pentose sugar. Pentose sugar का मतलब होता है कि the sugar is actually having 5 carbon, okay, at 5 corner, and it's a closed structure. Pentose sugar DNA में होती है deoxyribose sugar and RNA के अंदर होती है only ribose sugar, but दोनों की दोनों pentose sugar है, 5 carbon structure है, but deoxyribose, as you know the name, deoxyribose nucleic acid. So DNA is actually possess deoxyribose sugar and RNA possess ribose sugar only, but both are the pentose sugar, 5 carbon sugar. Number 2 is nitrogen base. Nitrogenous bases. The nitrogenous bases are actually having 2 groups. One is purine and one is pyrimidine. Please pay attention. One is purine and one is pyrimidine. Purine के 2 nitrogenous bases हैं, adenine and guanine. You can write also because this is not mentioned in the NCERT. Purine नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन ग्रुप के. तो प्यूरिन के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन. पिरामिडिन के अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन. थाइमिन एंड साइटोसिन. एडेनिन को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, इसको जी से, इसको टी से और इसको सी से. ओके. तो we can say that the nitrogenous bases जो होते हैं, that nitrogenous bases का मतलब these are the bases which contain nitrogen element. ठीक है. That's why these are known as nitrogenous bases. जो nitrogenous bases हैं वो 4 हैं, adenine, guanine, thymine and cytosine. Adenine and guanine are the brother sister which belongs to the purine parent, and thymine and cytosine are the brother sister which belongs to the pyrimidine parent. अब इन दोनों की शादी नहीं हो सकती. I told you already. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ शादी करेगा एंड गुआनिन इज ऑलवेज मैरिड विद साइटोसिन. जो एडेनिन और थाइमिन होता है उसके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, एंड साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और ये दोनों में डबल बॉन्डिंग मिलती है. एम आई क्लियर? तो दिस इज द सेकंड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, दैट इज नाइट्रोजेनियस बेस. थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, PO4. These are the 3 main components of which are found in the structure of DNA and RNA. Now in RNA, what are the differences? RNA sugar में आपको deoxyribose की जगह ribose sugar मिलेगी. Nitrogenous bases में ये सब सारे के सारे bases सेम होंगे, but जो thymine होगा, that thymine will be replaced by uracil. The thymine will be replaced by uracil and bonding same बनेगी. And they will be belongs to the purine and pyrimidine. लेकिन pyrimidine की में थाइमिन की जगह RNA में यूरेसिल आ जाएगा, यानी कि जो बॉन्डिंग होगी वो A के साथ T की ना होकर के U की हो जाएगी. That's it. बाकी फॉस्फेट शुगर सेम है. Now I told you the DNA and RNA are the polynucleotide chain.
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब सो मैनी न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड टुगेदर एंड दे एक्चुअली फॉर्म अ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से वो कनेक्टेड होकर के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, एंड दैट पॉलीमर इज डीएनए और आरएनए. न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ nucleotide is the combination of nucleoside plus phosphate group is known as nucleotide. न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है. और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड इज मेड बाय शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस. ये शुगर है. नाइट्रोजीनियस बेस में हमेशा हमें पेयर लेना होता है, तो पेयर में इधर विल टेक टू दिस और दिस. तो हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजीनियस पेंटोज शुगर के साथ में 3' और 5' विल काउंट 3N and 5N. इधर 3N और 5N पे आप क्या करते हो, इसका क्या लगाते हो, एडेनिन और थाइमिन या गुआनिन और साइटोसिन, कोई सा भी एक नाइट्रोजीनियस पेयर लगाते हो. तो हमने यहाँ पे ये पेयर लगा दिया एडेनिन और थाइमिन का. ये कनेक्टिव स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड. अब इस न्यूक्लियोसाइड पे अगर ये थर्ड एंड है तो इसका यहाँ से 1 2 3 थर्ड एंड ये है, तो फोर्थ और फिफ्थ एंड ये होगा. फिफ्थ एंड पे आप क्या लगाओगे, फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे. अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, एंड द न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पॉलीमर बनाते हैं, एंड दैट पॉलीमर चेन इज नोन एज डीएनए. डीएनए की एक चेन ऐसे चल रही है, मतलब काफी सारे ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, एक और न्यूक्लियोटाइड बना, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग विल बी फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. ये एक स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का. फिर डीएनए का एक और स्ट्रैंड बनेगा, एंड दैट डीएनए का एक और स्ट्रैंड जो होगा वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन चला रहा है. एक न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ चल रही है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ चल रही है. एम आई क्लियर? अब इस न्यूक्लियोटाइड चेन का अरेंजमेंट कैसे होता है, यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी ये सब चल रहा है, और ये जो बीच में बॉन्डिंग है ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्डिंग है. अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पे जितने भी, जैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे इसका हम एक बॉन्ड शो करेंगे, जैसे एडेनिन और थाइमिन यहाँ शो कर दिया, यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन शो कर दिया, यहाँ फिर एडेनिन थाइमिन शो कर दिया, यहाँ गुआनिन और साइटोसिन शो कर दिया, ऐसे हमने इधर शो कर दिए. ठीक है, साइमल्टेनियसली इधर भी हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन या गुआनिन साइटोसिन ऐसे चलेगा. अब मेरी बात सुनो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, सेंटर में जब ये एक स्ट्रैंड चल रहा है डीएनए का और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड चल रहा है, ठीक है, तो अब आपस में ये स्ट्रैंड इस तरह से कॉइल हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. ये इस तरह से कॉइल हो जाते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए से कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर बना लेते हैं. एक स्ट्रैंड चल रहा है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड चल रहा है डीएनए का, और आपस में कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. यहाँ पे एक आपने नाइट्रोजीनियस पेयर लिया है, यहाँ पे एडेनिन, तो दूसरे नाइट्रोजीनियस बेस का आ जाएगा थाइमिन, बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी डबल बॉन्ड. ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे अगर आपने गुआनिन लिया है तो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका साइटोसिन यहाँ आकर के ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा. तो दिस वे एक्चुअली द structure of DNA forms or RNA form. Again, have a look what I'm saying, trying to say. Just pay attention. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया आपको? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यू नो ऐसे होती है डीएनए की स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये दूसरा स्ट्रैंड चल रहा है साइमल्टेनियसली. ये डीएनए का एक स्ट्रैंड चल रहा है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड चल रहा है. ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड इज एक्चुअली अ पॉलीमर. एक पॉलीमर है पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड टुगेदर विद फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. यहाँ पे ये जो एक चेन चल रही है दिस इज अ पॉलीमर चेन. यहाँ पे भी जो दूसरी चेन चल रही है दैट इज आल्सो पॉलीमर चेन. उस पॉलीमर चेन में सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर विद लिंकेज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट. वन इज फॉस्फेट शुगर, सॉरी पेंटोज शुगर, सेकंड इज nitrogenous base, and third is phosphate group. Fine.
तो तीनों से कॉम्बिनेशन से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें पे अटेंशन प्लीज, यहाँ पे पेंटोज शुगर रहेगी, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ वो कैसे अरेंज करता है डीएनए को, ठीक है। ये पेंटोज शुगर बना दी, यहाँ पे इसका फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक एडिनिन लगा दिया, यानी एक नाइट्रोजनस बेस लगाना मुझे यहाँ पे साइमल्टेनियस, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। दूसरा स्ट्रैंड इसका भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, इसका अपोजिट पेयर, ऑब्लिगेटरी पेयर, एडेनिन का ऑब्लिगेटरी पेयर कौन है, थाइमिन। तो थाइमिन इधर आएगा, बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन पेंटोज शुगर होगी, और यहाँ पे इसका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे बीच में सेंटर में इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जो सेंटर में जो होते हैं, सेंटर के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, बेस पेयर्स आ जाते हैं, सेंटर में बेस पेयर्स आ जाते हैं, और साइड में यहाँ पे इसके पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप चलते जाते हैं। तो ये लैडर बन जाता है, क्या बन जाता है, लैडर। उस लैडर के बीच सेंटर में जो लाइंस होगी, उसके बीच वाले पोर्शन में नाइट्रोजनस बेस आएंगे, एम आई क्लियर। और यहाँ साइड वाले जो थ्रेड बनेंगे, उस थ्रेड में क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, एम आई क्लियर एवरीवन। तो ऐसे ही आरएनए बनता है, बस आरएनए में टी की जगह यू आ जाता है, दैट्स इट। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेना जरूरी है। जैसे एडेनिन अगर आपने यहाँ लिया है तो इसके पैरेलल में थाइमिन आना चाहिए, और अगर गुआनिन आपने लिया है तो उसके पैरेलल में साइटोसिन आना चाहिए, एम आई क्लियर एवरीवन। तो इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए अकर, एंड दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। किसी में सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर भी होती है इन बैक्टीरियाज एंड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। आपको पता है कि इनमें सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी मिलता है। तो दैट इज थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सिंपल होता है, लेकिन हमारे अंदर डबल स्ट्रैंड और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। So I suppose I am clear to you all about the structure of DNA, polynucleotide chain. So this is what I mean to say about the polynucleotide chain of DNA and RNA. अब आपको